Okay, so here we go. So right now we have a third chapter, that is data link layer. Okay. Till the last session we have completed the second chapter, that was physical layer. In that physical layer we have seen the guided media, that was the transmission media, which is the guided and unguided one. Okay. And after that we have seen the topologies also, and different miscellaneous topics. Okay. So all those topics were related with the physical layer. Means you can consider you can imagine the last you can imagine the first layer, which is physical layer. Okay. Because all the communication start from that particular physical layer only, and it goes and it is connected to the physical layer only. So we count all those topics which are connected, they are connected to the physical layer. Okay. That is the transmission media which is connected to a physical layer. Okay. Means or every raw bit is getting transferred or getting transmitted via physical layer only. Okay. So it was all about the physical layer, and now we'll go to the second layer, that is data link layer. Let me remind you, we have 7 layers of OSI reference model. So we have done the first one, that is physical layer. We are going to the second layer, that is data link layer. Okay. uh, in data link layer, basically it is the combination of, we can say, data link control and medium access control. Okay, you will find this thing later. For each and every layer you will find some sort of services. Okay, as we know that for physical layer we have a few services which our layer provides to the users. Okay. uh, our data link layer provides some services. Okay, those major services are framing, flow control, and error control. Okay, this framing, flow control, and error control are very, very giant services, very big services they are providing. That is the data link layer is providing. And you also know that in the previous one, I think when we were learning the OSI reference model, in that also we have seen that our data link layer is the one which provide the delivery of packets of delivery of the data from one node to another node. If I'm not wrong, and if you remember the thing, then let me remind you with the help of the diagram, because when you will see the diagram, then you will automatically will come to know about this one. Okay. So in second one, I think first one, when we were looking at the OSI reference model, because this is important. Okay, check it. So it was the data link layer, you can see, and your data link layer, it provides the hoop to hoop delivery. Okay, from one node to another node, from one node to another node. Okay, from one node to another node. Okay, so this is hoop to hoop delivery, which is provided by the data link layer. Okay, so you need to remember this diagram. Whenever you think of the data link layer, then you must imagine this thing, that case the hoop to hoop delivery is done by the data link layer. Okay. When you talk about the next one, that is network layer, which is responsible for the delivery of packet from from the source node to the destination node. Okay. तो डायरेक्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक की जो डिलीवरी है वो इट इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा आपका नेटवर्क लेयर वाज रिस्पॉन्सिबल. But for as far as your data link layer is concerned, it is responsible for hoop to hoop delivery. Okay. So एक नोड से दूसरे नोड तक आपका फर्स्ट होप, मैं आपको बताया था ना कि होप का भी एक काउंट होता है, आपके पैकेट के अंदर एक छोटा सेक्शन होपिंग का भी होता है. तो कितने होप्स लग रहे हैं, कितने स्टॉप लग रहे हैं टू रीच द डेस्टिनेशन, दैट इज ऑल्सो काउंटेड. सो ये आपका इट वाज रिगार्डिंग योर डेटा लिंक लेयर. ओके. और क्या था डेटा लिंक लेयर के बारे में, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट होप. ओके. तो ये अपने फ्रेम्स को वन होप से नेक्स्ट होप तक डिलीवर करने के लिए बोलता है. And we have also seen that the data link layer is divided into two sublayers, that is the medium access control and the logical link control. तो बेसिकली दो में डिवाइड किए थे. एक तो फिजिकल मीडियम के एक्सेस को कंट्रोल करेगा, और दूसरा फिजिकल लेयर, आपके फिजिकल लेयर्स को और दूसरे लेयर को क्या करेगा, कनेक्शन करेगा. ओके. द लेयर पैक्स द डेटा इनटू फ्रेम्स. ओके. Converting data into frames is called framing. So you will see the framing over here also. That is the major service our data link layer is providing. Okay.
सो ये था आपका छोटा सा हम लोगों ने रिकैप लिए। इतना इतना याद रखना है, होप टू होप डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। ओके, अब आते हैं हमारे वापस डेटा लिंक लेयर की तरफ। स्टार्टिंग विद द सर्विसेज पार्ट, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट डाला हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा लिंक लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर एज यू नो। ओके, सबसे नीचे हमारा फिजिकल लेयर है, उसके बाद में डेटा लिंक लेयर एंड उसके बाद में वी हैव नेटवर्क लेयर। सो आवर डेटा लिंक लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द data the physical layer and the network layer. The data link layer provides services to the network layer. It receives services from the physical layer. Okay, so both are different at the side of sending is at the transmitter side and at the receiving side. So it may differ. Okay, so if you consider at the sending side, then your data link layer will receive the services from upper layer. Okay, at the sending side, your data link layer will receive the services from the upper layer, that is from the network layer, and it will provide the services to the physical layer. Okay, but you talk about the when you talk about the receiving side. So at the receiving side, your data link layer will receive the services from the physical layer, and it will provide the services to the upper layer, that is network layer. Okay, so at the sending side and at the receiving side, it can differ. Okay, it will differ. When the packet is traveling in the internet, the data link layer of the node is responsible for delivering our datagram to the next node. Okay, the same we have seen, एक होप से दूसरे होप तक पूरे इंटरनेट में, पूरे पब्लिक नेटवर्क के अंदर एक नोड से दूसरे नोड तक की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका डेटा लिंक लेयर लेगी. ओके, for this purpose, the data link layer of the sending node needs to encapsulate the datagram received from the network in a frame and the data. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन भी करना पड़ेगा. अब इनकैप्सुलेशन क्या है, यू नो द इनकैप्सुलेशन क्या होता है. ओके, पैकिंग, आपका जो फ्रेम है उसको क्या करना, आपके एड्रेस के साथ में पैक करना. ओके, बेसिकली अगर आपके पास में कुछ पार्सल है, तो इफ यू वांट टू पोर्ट इट समवेयर एल्स, ओके, तो आप क्या करोगे, इसको प्रॉपर्ली बॉक्स के अंदर पैक करेंगे. ओके, बॉक्स के ऊपर पैक करके उसके ऊपर आप कुछ लेबल लगाएंगे, एड्रेस लेबल, एंड देन यू विल पार्सल इट. ओके, सो वो जो क्या हुआ आपका इनकैप्सुलेशन, बेसिकली आपने इसको पैक किया, उसके ऊपर एक एड्रेसिंग लगा दिया और आपने भेज दिया. So the same thing will happen here also. Okay, the data link layer of the sending node at the sending node needs to encapsulate the datagram. तो datagram packet अलग अलग बोलते हैं अलग अलग जगह पे. So encapsulate the datagram received from the network layer. मैंने क्या बोला था आपको, your data link layer will receive the services from the upper layer, that is from the network layer. Okay, because उसके ऊपर है सेंडिंग साइड पे, उसको कहाँ से रिसीव करेगा, अपर लेयर से, यानी कि नेटवर्क लेयर से रिसीव करेगा. तो इट विल रिसीव द सर्विसेज फ्रॉम द नेटवर्क लेयर. ओके, इन अ फ्रेम, एंड डेटा लिंक लेयर ऑफ द रिसीविंग नोड नीड्स टू डीकैप्सुलेट इट. ओके, अब रिसीविंग साइड पे क्या होगा, आपका जो डेटा लिंक लेयर है, इट विल रिसीव द सर्विसेज फ्रॉम द फिजिकल लेयर. ओके, यहाँ से रिसीव करेगा, उसको डीकैप्सुलेट करेगा, यानी उसको खोलेगा, पैकेट को खोलेगा और उस डेटा को आगे भेजेगा. ठीक है, so encapsulation is done at the sending side and decapsulation is done at the receiving side. Okay, so this is also clear. Encapsulation sending side पर होगा and decapsulation receiving side पर होगा. नोड टू नोड, होप टू होप डिलीवरी आपको प्रोवाइड करेगा आपका डेटा लिंक लेयर. ओके, ये स्लाइड हमारी क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. डेटा लिंक कंट्रोल जो आपकी, जो इसको हम लोग को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. सो वापस देखते हैं, उतना सब पढ़ने के बजाय. डेटा लिंक कंट्रोल फंक्शंस इंक्लूड फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. सो दीज 3 आर दी मेजर सर्विसेज. इसके ऊपर जो है ना 10 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आते भी क्वेश्चन. फ्लो कंट्रोल पे क्वेश्चन आता है, एरर कंट्रोल पे क्वेश्चन आता है, फ्रेमिंग पे क्वेश्चन आता है. ओके, तो फ्रेमिंग हम लोग तीनों सर्विसेज हम लोग एक एक करके देखते हैं. ओके, सो हमारे डेटा लिंक कंट्रोल की जो सर्विसेज है वो ये है. नंबर 1 इज फ्रेमिंग, नंबर 2 इज फ्लो कंट्रोल, नंबर 3 इज एरर कंट्रोल. ओके, अब जैसे जैसे देखो, आप अभी कहाँ थे, आपने फिजिकल लेयर पे देखा, कुछ ज्यादा सर्विसेज नहीं थी. आपके रॉ बिट्स को, आपके डेटा को रॉ बिट्स में कन्वर्ट करने का काम, एंड वाइस वर्सा एट द डेस्टिनेशन साइट वाज डन बाय द फिजिकल लेयर. ओके, तो ऐसे ही इसके कुछ सिंक्रोनाइजेशन का काम था. अगर आपको रिमेंबर, अगर आपको याद है, so if you remember the slide what we have seen in the first slide,
हमारे फर्स्ट चैप्टर की, उसके अंदर जो OSI का पूरा एक्सप्लेनेशन था, स्लाइड आपके सारी लेयर्स का एक्सप्लेनेशन था, तो उसमें मैंने फंक्शन बताया था हर लेयर के क्या फंक्शन है। ओके, तो अगर वो याद है तो उसका आप लोग कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक बार देख लो इसको वापस से। देखो, ये डेटा लिंक लेयर का था, ये फिजिकल लेयर का था। मैंने बताया था आप लोगों को इसके फंक्शन। इट डिफाइन द डेटा रेट, it is also it also done the synchronization and signal into bits and vice versa. Okay, so आपका physical layer was responsible for these three functions. Okay, now your data link layer is responsible for the three services or function, what we can say. So जो हम लोगोंने देखा भी, number one is framing, number two is flow control, and number three is error control. Remember these three services. Okay, और भी आगे आएंगे कि करके। अब जैसे जैसे आप दूसरी लेयर्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, सो यू विल गेट मोर सर्विसेज। ओके, तो हाँ, मतलब हर लेयर अपने साइड की जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ओके, सो फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग से। ओके, so what we have done till now, we have started the new chapter, that is data link. Those who have joined late, उनके लिए बस बोल रहा हूँ मैं, 36 students have joined till now. Okay, so we have started the chapter that is data link layer, the second layer of the OSI reference model. Wherever from bottom to हम लोग यहाँ बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग पहले हम लोग ने फिजिकल लेयर पढ़ा, एंड देन वी आर लर्निंग दी डेटा लिंक लेयर। ओके, data link layer के अंदर we have seen that your data link layer is responsible for node to node and hope to hope layer. This is just for the people who have joined till just now. Okay, and we have seen the services. Okay, so we have not seen the services, we have just gone through the name of those services. Okay, that is framing, flow control and error control. Now we are starting with the first service, that is framing. Okay, अब बात तो क्लियर है, हम लोगों ने वो स्लाइड में देखा था। इन फ्रेमिंग, in framing what we have to do, we have to pack our data into frames. Okay, हमारे डेटा को क्या करना है, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करना है, फ्रेमिंग करना है उसी। so converting your data into frames is called framing. The basic very basic आंसर हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। ओके, इन्हें के वो फर्स्ट चैप्टर वाली स्लाइड में। तो फ्रेमिंग वाला आपका मतलब कि आपके डेटा को फ्रेमिंग में कन्वर्ट करता है ये। सो द वेरी फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डेटा लिंक लेयर इज फ्रेमिंग. The data link layer at each node needs to encapsulate the datagram packet received from the network layer. So this is, just remember, this is happening at each and every node. Okay, so imagine you have a start. मैं यहाँ से देखता हूँ, कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। So imagine this is node A. Okay, if you can see this one. So this is node A, which is the source. Okay, this is my node B. Okay, this is my node B. Okay, and this is my node C. Okay, so let us imagine, let us consider that A is the source, and C is the destination. Okay, so C is my destination. Okay, and we have number of, चलो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और अगर लेना है तो और भी कुछ ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा लोगों को भी और क्लियर हो जाए। So we have more number of nodes in between of them. So from source to the destination we are getting, ये आपका सोर्स वाला A नोड है, this is your B, okay, this is your C, this is your D and this is your E. okay, तो ये मेरा A, इसको मैं काट के सॉरी इसको मैं E कर देता हूँ, ये आपका डेस्टिनेशन है बराबर। सो यहाँ से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा आपका यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, डेटा इज मूविंग फ्रॉम C to D. okay, your data is moving from D to E. okay, so this is the way your data is traveling from source to the destination. Okay, now we are saying that from A to B your data link layer is responsible from this hop to this hop. okay, sorry, from this node to this node, एक नोड से दूसरे नोड तक की के लिए आपके आपके डेटा को क्या करेगा, ये ट्रैवल करवाएगा, आपके डेटा को पहुंचाएगा। ओके, सो जस्ट थोड़ा सा और फोकस करो अभी। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, I told you that the encapsulation and decapsulation is being done over here. Okay, and we are telling that
we are telling that our data link layer is responsible for delivering of packet from A to B. Okay, if I'm saying that it is responsible for delivering of packet from A to B, then my source is A. For this instance, for my source is A and my destination is B. Okay, right now for this instance my source is A and destination is B. Okay, so आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, encapsulation and decapsulations are done. Okay, and how this is going to done, because A is the sender node, so encapsulation will be done over here, and ये आपका B आपका destination है अभी के लिए, तो B के पास में क्या होगा, decapsulation होगा. ओके, तो इसको कर लो. यहाँ पर इनकैप्सुलेशन हुआ. ओके, इनकैप्सुलेशन मतलब क्या, the data link layer at each node needs to encapsulate the datagram packet received from the network layer. तो ये आपको अपर लेयर से मिला, ठीक है, बिकॉज ये आपको, आप अभी डेटा लिंक लेयर पे हो, सो यू हैव गॉट द सर्विसेज एंड यू हैव गॉट द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर. ओके, तो आपने क्या किया, उसको अच्छे से फ्रेमिंग किया, उसको पैकेट में अच्छे से पैक किया, लेबल लगाया. ओके, तो आपने उसको इनकैप्सुलेट किया. ओके, अच्छा, इन अ फ्रेम बिफोर सेंडिंग इट टू द नेक्स्ट नोड. तो ये दूसरे नोड को भेजने से पहले क्या होगा, यहाँ पर इनकैप्सुलेशन होगा. इनकैप्सुलेशन पैकेट को अच्छे से लगा के उसके ऊपर लेबलिंग लिंक करके उसने रेडी किया और इनकैप्सुलेशन हुआ. ठीक है, द नोड ऑल्सो नीड्स टू डीकैप्सुलेट द डेटाग्राम फ्रॉम द फ्रेम रिसीव्ड ऑन द लॉजिकल चैनल. तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका डीकैप्सुलेशन हो रहा है. सो डीकैप्सुलेशन में आपका जो लेबल लगाया था, वो लेबल के ऊपर ये आपका सोर्स था. ठीक है, वो लेबल के ऊपर क्या लगाया था उन्होंने, भाई सोर्स कौन है, द सोर्स इज ए, डेस्टिनेशन कौन है, डेस्टिनेशन बी है. तो आपका पैकेट जो है ना, तो इनकैप्सुलेट यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ पर आकर रुक गया. यहाँ पर आने के रुकने के बाद में जब चेकिंग हुई तो बोला भाई डेस्टिनेशन कौन है, तो यहाँ पे डीकैप्सुलेशन हुआ और उसमें चेक किए तो पता चला कि यही आपका डेस्टिनेशन है. यहाँ पर आने के बाद में इसको डीकैप्सुलेट किए वापस से, ये आपका यहाँ से यहाँ पे, बिकॉज अगेन your data link layer is responsible for node to node delivery. So now this will become your source and it will become your destination. Okay, ये बन गया आपका source, ये बन गया destination. Now for this instance, for this delivery, तो यहाँ पर वापस से encapsulation होगा, यहाँ पर से वापस से आपका decapsulation. So it will again repeat and repeat for all the nodes which comes in between the source and destination. So framing और देखते हैं framing अभी कैसे होती है. बेसिकली हमारे पास में framing अलग अलग टाइप की फ्रेमिंग होती है, देखते हैं. सो डेटा ट्रांसमिशन इन द फिजिकल लेयर मींस मूविंग बिट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. सो बेसिकली तो यही है. द डेटा लिंक लेयर ऑन द अदर हैंड नीड्स टू पैक इट्स बिट्स इनटू फ्रेम सो दैट ईच फ्रेम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. ओके, अब जाहिर बात है यू विल हैव टू पैक द डेटा, और उसके ऊपर जब आप उसकी फ्रेमिंग करेंगे तो आपके सारे पैकेट्स, आपके सारे फ्रेम्स अलग अलग रहेंगे, बिकॉज सबके ऊपर सोर्स डेस्टिनेशन अलग अलग रहेगा. यू रिमेंबर आवर पोस्टल सिस्टम, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ. आवर पोस्टल सिस्टम कैसा होता है, आवर ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम हैव, और ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम जो होता है उसके अंदर बेसिकली आप अपने जो पार्सल है या अपना जो लेटर है उसके ऊपर एड्रेस वगैरह लगा के आप उसको अपने लेटर बॉक्स में डाल देते हैं. फिर लेटर बॉक्स से आपका जाएगा वहाँ से, फिर और वहाँ पे आके जाके लोग चेक करेंगे कौन सा सिटी का है, वो सिटी में जाएगा, वो सिटी में जाने के बाद में कौन सा एरिया का, फिर वो डिस्टिंग्विश होके आपका जाते हैं. तो ऐसा आपका पोस्टल सिस्टम है, वैसा आपका ये भी काम करते हैं. So framing in the data link layer separate the message from one source to the destination by adding a sender address and a destination address. So basically we have to add it because we have to reach, our frame has to reach the destination. तो ये just मैं थोड़ा introductory part दे रहा हूँ, उतना कुछ वो नहीं है. The destination address define where the packet is to go. Okay, the sender address help the recipient acknowledge the receipt. तो सेंडर का एड्रेस भी उसके ऊपर होता है, सो दैट यूर रिसीवर कैन एक्नॉलेज. मैंने आपको बताया था कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. ओके, इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वी मस्ट गेट एन एक्नॉलेजमेंट इन ऑर्डर टू सेंड द नेक्स्ट पैकेट. ओके, अगर आपको नेक्स्ट पैकेट भेजना है सेंडर को, सो यू मस्ट, आपका सेंडर मस्ट गेट एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर. तो उसके ऊपर तो सोर्स डेस्टिनेशन दोनों आता है, तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट भी आते जाएंगे. Although the whole message could be packed in one frame, example you are having one mp3 file of 5 MB, but you cannot pack the whole mp3 file, that is 5 MB की file into one frame. ऐसे घुसा के डाल दो और पैक कर दो, ऐसा तो कुछ है नहीं. That is not normally done. Why? Reason why? Large frame
में क्या होता है प्रॉब्लम, उसमें एरर्स आते हैं और रीट्रांसमिशन करने में प्रॉब्लम होता है। रीट्रांसमिशन का अगर आप लोग, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, बिकॉज आप उसको टाइमर लगाते हैं और फिर आपका डेटा जाएगा, जाके पहुंचेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट लाएगा। ओके, तो टाइमर लगाएगा 1 मिनट जाने के लिए, 1 मिनट आने के लिए। 2 मिनट में अगर नहीं आया तो यहाँ से रिट्रांसमिशन हो जाता है फौरन। ओके, बिकॉज वी हैव पुट द टाइमर। ओके, सो रिट्रांसमिशन का भी कॉन्सेप्ट है। सो अगर कभी आपकी फाइल बड़ी है, अगर फाइल बड़ी है तो उसके लिए फिर आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं। तो क्योंकि जितना बड़ा एरर, फॉर एग्जांपल जितना बड़ा डेटा उतने ज़्यादा एरर्स के चांसेस है, जितना छोटा डेटा रहेगा उतने कम चांसेस रहेंगे आपके। अच्छा, ये भी इमेजिन करो, अगर आपने डेटा को एक ही फाइल में अगर भेज दिया। ओके, इफ यू आर सेंडिंग योर डेटा एज अ होल इन वन फ्रेम ओनली, देन व्हाट विल हैपन, ओके, द रेट ऑफ द एरर्स, ओके, विल बी मोर। ओके, और वहीं पर इफ यू आर सेपरेटिंग ऑल द फ्रेम्स, ओके, अगर आपने 5 MB को अगर आपने 10 फ्रेम्स बना लिए, ओके, तो 500 KB के हिसाब से पकड़ लो। सो अगर आपने 10 फ्रेम्स अगर बना लेते हैं, एंड अगर चांसेस होते हैं 1-2 फ्रेम में अगर एरर आ भी जाता है, देन यू नीड टू retransmit only those 2 frame only। ओके, तो आपको कम से कम आपको भेजना पड़ेगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर आप एक साथ में भेजते हैं तो उसके अंदर अगर कितने एरर्स आते हैं, उसमें सिंगल एरर है, बर्स्ट एरर है, मतलब एक से ज्यादा एरर्स है, तो वो आपको फाइंड आउट करना, उसके लिए अलग से मैकेनिज्म लगाओ, तो वो बहुत सारे झंझट है। ओके, सो वी कैन डू सो बट वी आर नॉट डूइंग, बिकॉज लार्ज फ्रेम्स के अंदर एरर्स आते हैं। और क्योंकि एरर तो कभी कभार किसी में आ ही जाते हैं, इसमें ज़्यादा प्रोन टू एरर है, और रीट्रांसमिशन भी आपके लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए एक साथ में नहीं भेजते हैं, बल्कि उसकी फ्रेमिंग करके भेजते हैं। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब यहाँ पर 2 टाइप की फ्रेमिंग होती है। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग इन द डेटा लिंक लेयर। ओके, वन इज द कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब कैरेक्टर आपका कितने बिट का होता है कैरेक्टर, कोई बताएगा मुझे, कैरेक्टर कितने बिट का होता है? अरे कोई बताएगा। 1 बिट का होता है। चलो, बहुत जल्दी आंसर आ गया। सो वेरी गुड। कैरेक्टर जो होता है आपका 1 बिट का होता है। ओके, और अगर सर 1 बिट का, सर 1 बाइट का कैरेक्टर होता 1 है। बाइट 1 रहता है बाइट ना? का होता है, 1 बाइट का। सॉरी 1 बाइट का। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग फिर कहाँ चले गए। तो कैरेक्टर आपका 1 बाइट का है, सो उसके अंदर आपके टोटल 8 बिट्स आ गए। और उसके अलावा आपका बाइट स्टफिंग, जिसको हम लोग सॉरी, एक तो आपका बाइट ओरिएंटेड और बिट ओरिएंटेड, दोनों उसका नाम मतलब 2 अलग अलग है आपके फ्रेमिंग टाइप के, जिसके अंदर आपके जो कुछ उसके अंदर जो फ्रेम्स के अंदर जो कुछ आपके बिट्स होते हैं, उसको चेंज किया जाता है और उसको मॉडिफाई करते हैं। ओके, सो दैट आगे चल के यानी कि डेस्टिनेशन साइट पे प्रॉपरली हम लोग उन फ्रेम्स को पहचान सके और उनके अंदर हम लोग अपने जो भी अपने डेटा को रिसीव कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट वन, दैट इज कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग से। ओके, सो इन कैरेक्टर ओरिएंटेड, दैट इज द बाइट ओरिएंटेड, इसको हम लोग बाइट ओरिएंटेड भी बोलते हैं, बिकॉज बाइट में आपके 8 बिट्स आए थे। So in character oriented, that is the byte oriented framing, data to be carried are 8-bit characters। तो basically ये तो हमारा क्लियर है। The header which normally carries the source and destination address and other control information, आपका जो हेडर होता है, बेसिकली हेडर में क्या होना चाहिए, योर हेडर मस्ट कैरी योर सोर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, तो हेडर जो साथ में होता है, हेडर के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस कैरी करता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द ट्रेलर which carries error detection redundant bits are also multiples of it। तो बेसिकली टेलर्स के अंदर इतना आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर कुछ रिडंडेंट बिट्स होते हैं। अब रिडंडेंट बिट्स क्या होते हैं आपके? द रिडंडेंट बिट्स आर द बिट्स which are removed at the destination, which are added at the sender side and which are removed at the destination side। okay, so these are the redundant bit। अब इनको ऐड क्यों करते हैं हम लोग? इनको ऐड हम लोग इसके लिए करते हैं so that we can find out the errors। okay, we can find out the errors and we can remove the errors। okay, so for error purpose we add these redundant bits at the sender side and we remove them at the destination side। okay, so टेलर भी क्लियर है। तो सबसे पहले कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, जिसके अंदर 8-बिट कैरेक्टर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट, हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। थर्ड, ट्रेलर के अंदर कुछ रिडंडेंट बिट्स होते हैं जो हमारे एरर डिटेक्शन करेक्शन के लिए यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट,
To separate one frame from the next, an 8-bit, that is 1 byte flag is added at the beginning and at the end of the frame. तो आपके फ्रेम्स को, आपके डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टार्ट में और एंड में एक एक बाइट का फ्लैग, मतलब एक एक बाइट का फ्लैग लगाते हैं. आप लोग डायग्राम देखेंगे, समझेंगे. पहले डायग्राम देखते हैं. तो दिस इज बाइट स्टफिंग. स्टफिंग मतलब एडिंग बेसिकली. ओके, तो स्टफिंग इज डन एट द सेंडर साइड, अनस्टफिंग इज डन एट द रिसीवर साइड. दैट्स कॉमन वन. ओके, so this is your data which you are getting from the upper layer, data from the upper layer. Okay, so ये आपके हेडर है, ये आपका ट्रेलर है. ओके, एंड यू विल फाइंड दिस फ्लैग. देखो ये आपका फ्लैग है जो कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में लगाया आप लोग ने. ये आपका ट्रेलर है जो आप लोग ने पढ़ा, ये आपका हेडर है जो आपने देखा. ओके, एंड दीज आर द एक्स्ट्रा बाइट जो हम लोग ने लगाया है. और इसका भी है कॉन्सेप्ट. पहले हम लोग ये वाली स्लाइड देख लेते हैं, मुझे लगा उसके अंदर कवर हो जाएंगे. इन बाइट स्टफिंग और वी कैन से कैरेक्टर स्टफिंग, a special byte is added to the data section of the frame. देखो यही जो पूरा प्रोसीजर हम लोग पढ़ रहे हैं, यही बेसिकली आपका फ्रेमिंग. तो फ्रेमिंग में यही सब होगा आपकी. ओके, तो ये वाली साइड हमारी क्लियर है कि अंदर क्या क्या होता है आपके. ठीक है, तो बेसिकली 8 बिट का आपका फ्रेम है, उसके अंदर आपके हेडर है, आपका ट्रेलर है, और एक मतलब आपके स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक एक फ्लैग बाइट आप लगाएंगे. ठीक है, 1 बाइट का एक फ्लैग आप ऐड करेंगे टू आइडेंटिफाई द डेटा. ओके, और उसके बाद में सेकंड में अब एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द बाइट स्टफिंग, वी आर गोइंग टू ऐड स्पेशल बाइट टू द डेटा सेक्शन ऑफ द फ्रेम. ओके, तो हमारे इस डेटा सेक्शन के अंदर हम लोग एक स्पेशल बाइट ऐड करने वाले हैं एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केप. ओके, ESC. क्यों? The data section is stuffed with an extra byte. This byte is usually called the escape character, ESC character, and has a predefined bit pattern. इनका एक particular pattern है. So whenever the receiver encounter the escape character, it removes it from the data section and treat the next character as a data. Okay, so why we are adding this extra byte, extra इस जो एक्स्ट्रा जो हम लोग फ्लैग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, वो मतलब जो एक्स्ट्रा जो हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, दैट इज द एस्केप कैरेक्टर. हम लोग ऐड इसके लिए कर रहे हैं कि whenever the receiver encounter this escape character, so it will remove it from the data section. ये जो रिमूव करने का प्रोसीजर मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या हो रहा है बेसिकली, रिमूव करने का काम डीकैप्सुलेशन हो रहा है, जो कि आपके नेक्स्ट नोड पर होगा. ओके, सो स्टफिंग, अनस्टफिंग, इनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन. ठीक है, तो ये सब आपके सेंडिंग एंड रिसीविंग रिस्पेक्टिवली साइड पर होंगे. सो whenever the receiver encounter the escape character, it removes it from the data section and it will treat the next part as a data section. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि we have this header, this trailer, flag and escape character के बाद से फिर हम लोग का जो है वो डेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, as करेंगे. तो ये आपका as का ये पूरा का पूरा as यहाँ पर आपका stuffed हुआ है और यहाँ पर unstuffing हुआ है. ठीक है, तो जब ये आपका फ्रेम सेंड हो रहा है तो ये सब लगा के और रिसीव ये हुआ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये रिसीव हुआ, ये वाला आपका रिसीव हुआ, तो रिसीव होने के बाद में इनकैप्सुलेशन नहीं, अब सॉरी यहाँ पर डीकैप्सुलेशन होगा. सो आफ्टर डीकैप्सुलेशन आपको ये वाला डेटा मिलेगा. ठीक है, सो मतलब बेसिकली उन्होंने ऐसी पूरा सीरीज में बता दिया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपका, इट इज गोइंग टू बी डन एट द सेंडर साइड एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू बी परफॉर्म एट द रिसीविंग साइड. तो बेसिकली इतना सब अगर इससे कंफ्यूज नहीं होना है तो जस्ट इतना समझो, we have the first type of framing जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग stuffing भी बोलते हैं. ओके, and this is called the byte stuffing. ओके, so ये byte stuffing में basically क्या होता है, we are going to add one special byte जिसको हम लोग बोलते हैं escape character. ओके, so one special character is added before the data section. Okay, so whenever receiver encounter that particular character, so it will remove that particular special byte and it will treat the next part as the data. फिर वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा. ओके, एंड हेडर और ट्रेलर तो हम लोग लगाते हैं बिकॉज भेजना है, तो उसके लिए तो आपको एड्रेस तो देना पड़ेगा. ठीक है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. ओके, और फिर आपके ट्रेलर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट बिट्स है, वो आपको इसके लिए कि आपको अगर एरर्स अगर आते हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपका 1011 डेटा था,
और ये हो गया 1010 हो गया, तो एक बिट आपका चेंज हो गया। तो ये इसको रेक्टिफाई करने के लिए आगे हमको ये ट्रेलर का पार्ट लगता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड दैट हेडर एंड ट्रेलर, और उसके पहले फ्लैग और उसके आगे फ्लैग। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एंडिंग में फ्लैग लगा, ये तो हमारा रूल ही है, बाइट स्टफिंग का रूल है। ओके, सेकंड रूल ये भी है कि बिफोर स्टार्टिंग द डेटा सेक्शन वी हैव टू ऐड अ स्पेशल बाइट, special character name as a ESC character, that is escape character. Okay, and the same जहाँ जितना हम लोग ने लगाए हैं at the receiver side, ये सब हम लोग क्या करना है, निकालना है। ओके, सो जितना लगाए हैं उतना हम लोग को निकालना है at the receiving side. ओके, so that is very very simple. बाइट स्टफिंग में एक बाइट ऐड करते हैं। ओके, और स्टार्टिंग में एंडिंग में एक एक फ्लैग हम लोग बाइट ऐड करते हैं। तो ये इतना है आपके बाइट स्टफिंग में, दैट इज कैरेक्टर स्टफिंग भी बोलते हैं इसको। सो कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, इसका अच्छे से नाम अगर लेंगे तो दैट इज द कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। अब आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। ठीक है, वहां पर देखो आपका 1 बाइट ऐड कर रहे थे। ठीक है, वी वर एडिंग स्पेशल बाइट। ओके, 1 टोटल 8 बिट्स ऐड कर रहे थे, यहाँ पर अभी सिंगल बिट की बात है। ओके, सो दो अलग अलग टाइप की फ्रेमिंग है, कैरेक्टर ओरिएंटेड मतलब बाइट ओरिएंटेड एंड बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। अब आपका बिट ओरिएंटेड में क्या देखते हैं, सो इन बिट स्टफिंग या स्टफिंग या फ्रेमिंग बोलो उसको, अच्छा नाम तो फ्रेमिंग ही है, बट वी आर एक्चुअली एडिंग द थिंग्स, वी आर एडिंग द बिट्स और बाइट्स रिस्पेक्टिवली, अलग अलग दोनों में, तो इसके लिए हम लोग स्टफिंग भी बोलते हैं। सो इन बिट स्टफिंग इफ अ 0 and 5 consecutive 1 bits are encountered, an extra 0 is added। देखो ये इनका रूल है, या अगर बाइट स्टफिंग में इफ अ 0 and 5 consecutive ones, तो 0 के बाद में अगर 5 consecutive 1 अगर आते हैं, बिट्स आर एनकाउंटर्ड, एन एक्स्ट्रा 0 इज एडेड। तो हम लोग डायग्राम में देखेंगे, दिस एक्स्ट्रा स्टफ्ड बिट इज इवेंचुअली रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा बाय द रिसीवर। तो रिसीवर भाई साहब उसको बराबर वहां से रिमूव करेंगे, बिकॉज यू नो दैट whatever we are adding at the sender side, it has to be removed by the destination or the receiver at the receiving side. Note that the extra bit is added after 1 0 followed by 5 ones regardless of the value of the next bit। okay, तो ये आप लोग डायग्राम में देखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट भी रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये आपका डेटा है। ओके, सो दिस इज माय डेटा 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1, ये हमारा डेटा है। ओके, तो 0 के बाद में आपके 1 2 3 4 5, तो ये वाला आपको मिल गया डेटा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको 0 ऐड करना है। ओके, इसमें आपको 0 ऐड करना है। आपको आपका रूल क्या है, द रूल इज दैट के 0 के बाद में अगर 5 consecutive ones अगर आते हैं, देन वी हैव टू ऐड 1 एक्स्ट्रा 0 बिट। ओके, ये खाली रूल है। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द बिट स्टफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग 1 extra 0, the process of adding 1 extra 0 whenever 5 consecutive ones followed by 0, यानी कि देखो 0 भी पहले रहना जरूरी है, तो पहले 0 उसके बाद में 1 1 1 1 1, तो 5 ones आना चाहिए, so that the receiver does not mistake the pattern 0 1 1 1 1 1 0 for a flag। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, so we have this data in which after 0 we have 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हमको एनकाउंटर हुआ। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर 0 मिला, तो अगेन वी आर नाउ अलर्ट के भाई चलो 0 आया है, एंड 0 के बाद में 1 1 1 1, तो आपको 5 1 यहाँ भी मिल गए। तो आपके यहाँ पर टोटल कितने बिट आप लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर आपके 2 बिट ऐड होंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको 2 ऐसे केसेस मिले हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल। ओके, तो ये एग्जाम्पल आप लोग लिख भी सकते हैं। सो अगेन एज अ फ्लैग हेडर ट्रेलर, आपका जो जब आप लोग सेंड करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो लगती है। ठीक है, इसको तो फिर आप लोग को बाय डिफॉल्ट कंसिडर ही करना है। तो ये रहे आपके 3 0 एज इट इज नीचे उतार लिए। आफ्टर 5 0 एज इट इज हम लोग ने ले लिए। आफ्टर 5 0 के बाद में ये पॉइंट पर आपको क्या ऐड करना है, एक 0 ऐड करना है। When you encounter 5 consecutive ones followed by 0, then you have to add 1 extra bit as a 0। ओके, तो ये इसके बाद में हम लोग को एक 0 ऐड करना है। तो ये आप लोग ने स्टफ किया, इसको बोलते हैं बिट स्टफिंग, एक बिट आपने स्टफ किया। सो 0 हैज बीन एडेड ओवर हियर।
सिंपल है। वहां पर आप लोगों को क्या, वहां पर क्या था रूल, यहाँ पर क्या रूल था, दोनों के रूल याद में रखना है। डायग्राम एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, देन आई एम श्योर कि आप लोग इसका भी आराम से आंसर कर सकते हैं। सी द फर्स्ट आपका ये सर्विस चल रही है, द फर्स्ट सर्विस ऑफ डेटा लिंक लेयर, दैट इज फ्रेमिंग। ओके, सो वी आर लर्निंग about the framing, and these are the two types of framing. One is the character oriented framing, and second is the bit stuffing or bit oriented. ओके, तो ये आपका 5 कंसेक्यूटिव 1 आ गए, उसके बाद में आपने 0 ऐड कर लिया, उसके बाद में आपका ये 1 है 1 है, सो यू हैव टू वंस 1 एंड 1. ओके, आफ्टर दैट अगेन यू आर हैविंग दिस 2 zeros, and then after 2 zeros you are having 5 consecutive 1, so 5 consecutive 1. After that ये point पर at this point you will be adding one more 0, यहाँ पर आपने एक 0 और ऐड कर लिया. After that 0 1 0 0 0 1 0 0 as it is data. सिंपल, ठीक है। तो 0 के बाद में 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस आते हैं, देन आपको सेंडिंग साइड पे, क्योंकि सारा काम आप कहाँ कर रहे हैं, एट द सेंडिंग साइड, यू आर डूइंग ऑल दिस वर्क एट द सेंडिंग साइड। तो सेंडिंग साइड पे आपने क्या करना, आपको एक 0 उसमें ऐड करना है, ठीक है, क्लियर है? एनीवन प्लीज रिप्लाई। अरे कोई तो बोलो। यस सर, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है, चैट बॉक्स में आप लोग क्या रखें, लेकिन एक्चुअली मैं इधर ही हूँ अभी। सो ठीक है, दिस इज जो हम लोग ने प्रीवियसली व्हाट वी हैव सीन, इट वाज द बाइट स्टफिंग। हम लोग ने एक बाइट ऐड किया, स्पेशल बाइट वाज एडेड, ओके, एंड हियर वी आर एडिंग वन स्पेशल बिट, ओके, बट वी हैव अ रूल, ओके, एंड व्हाट इज द रूल? आफ्टर 0 and 5 consecutive 1 we have to add one extra 0 that we have added over here. यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर ऐड किया, and after adding it was done at the center side, it was done at the center side. You can see 2 extra bits are added or stuffed, okay, and the same data will be received. देखो देखो, ये जैसे आपका frame sent है, and this is the frame which we have received, okay, so this frame we have received at the destination side, at the receiver side, okay. After receiving, what we'll do, we'll remove those zeros, okay, तो हम लोग उसको रिमूव करेंगे, because we know that this is the rule. तो ये आपका यहाँ पर रिमूव करेंगे और रिमूव करने, अच्छा ये देखो यहाँ पर ये सब क्यों करते हैं, स्टफिंग अनस्टफिंग, ये इसके लिए करते हैं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर डेटा, आप अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर सको, ओके, और डेटा को आइडेंटिफाई करने के बाद में अगर फॉर एग्जांपल कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप उसमें करेक्शन भी कर सको, इन्हें रिसीवर साइड पे उतना पूरा मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली डन इन द फ्रेमिंग, ओके। So framing of two type, one is character oriented, second is the bit oriented framing, okay, या character stuffing and unstuffing and bit stuffing and unstuffing, okay. So ये रहा आपका फर्स्ट सर्विस जो कि है फ्रेमिंग, ओके। आई थिंक ये फर्स्ट सर्विस में हमारा टाइम निकल गया है 44, okay. So let me ask any question if you are comfortable. Okay, thank you. I want to ask थोड़ा सा करते हैं ना, मुश्किल को आप लोगों से। अफीफ पल्लावकर, where is Afif? Yes, Afif. So what is the rule in character oriented stuffing? You can unmute yourself. Yes, sir. Yes, Afif. So what is the rule in character oriented stuffing or character oriented framing? If we get 1 0 and that 5 consecutive ones, then we have to add one extra 0 after that. Very good, Afif, very good. आसिया नहीं, अफीफ आपको जाना नहीं है, आपने अभी सुनना है आपको, because your answer is wrong, okay. Asiya, just answer this question. What is the rule in the input data, if we encounter any 0, we have to check the 5 if there is a 5 consecutive ones. If there is a 5 consecutive ones, then we have to, so what happened? I'm talking about the character oriented stuffing. I'm talking about character oriented. The first one, you both have answered for the next one. Escape character, right?
Yes, about the escape character. One extra byte. Extra byte. Yes, sir. Hmm. I remember. Sir, what is the rule of that? I think you have showed the diagram of header, then escape extra bit and Hmm. trailer. In the same pattern, we The have rule is to simple, Asia and add. Afif. The rule, हाँ, okay, good, good. मैंने आपको diagram show किया हूँ. The rule is simple. You have to add an extra byte before the data section. That's simple. आपको data Yes, section sir. के पहले आपको क्या करना है? एक extra byte add करना है. Add और करना. extra byte का नाम क्या है अफीफ? Escape. हाँ, ESC. नहीं अफीफ आंसर करेगा ना? अफीफ बोलो. Yes, sir. What is the name of that special byte or special the thing we are adding in the data Escape. section? Escape. ESC character. Okay, escape character. Okay. So Okay, sir. you both were talking about. Okay, now you can mute yourself. You both were talking about the bit-oriented stuffing. That is, we are adding the single bit in the data section. Okay. So remember about these two. One, what is how we have to add the extra bits or byte in the data section according to the rules. Okay. So I hope you will understand this thing, and thank you so much. Okay. Let me give you the attendance link. Attendance link. You can start marking on attendance. You can start now. I will stop the recording. Omkar. Omkar, you can share the recording later. Okay. Thank you so much.